روح نکلنے سے ایک لمحہ پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایسے حقائق جو آپ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے۔ عالم برزخ، جہاں روح موت کے بعد سب دیکھتی اور سنتی ہے۔ مرے ہوئے لوگ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جب مردہ عالم برزخ میں پہنچتا ہے تو باقی مردے اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند کر لیں گے، پھر نہ کبھی کھول سکیں گے، نہ اپنے پیاروں کی آوازوں کا جواب دے سکیں گے؟ وہ آوازیں جو آخری بار کانوں میں گونجیں گی مگر زبان خاموش رہے گی۔ وہ لمحہ جب جسم یہی رہ جائے گا اور روح اس سفر پر روانہ ہو جائے گی جو ہر انسان کو کرنا ہے، مگر ایک ہستی ایسی تھی جسے اس سفر کی حقیقت سب سے بہتر معلوم تھی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وہ وقت آ پہنچتا ہے جسے انسان برسوں ٹالتا رہتا ہے، جسے یہ سمجھتا ہے کہ شاید کبھی آئے گا ہی نہیں۔ وہ آخری سانس، جب زبان میں بولنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں ایک جگہ جم جاتی ہے، دل ایک آخری دھڑکن کے بعد خاموش ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیروں سے ٹھنڈک شروع ہوتی ہے، مگر یہ عام ٹھنڈک نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ روح جسم سے جدا ہونے والی ہے۔ پھر روح آہستہ آہستہ پیروں سے نکلتی ہے، ٹانگوں سے گزرتی ہے، پیٹ، سینہ اور آخرکار گلے تک پہنچ جاتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جب روح گلے تک پہنچ جاتی ہے اور اس وقت ہم سب دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر کچھ کر نہیں سکتے، اور اسی لمحے روح کا نکلنا انتہائی مشکل کر دیا جاتا ہے۔ انہی نازک لمحوں میں انسان کے سامنے ایک سیاہ صورت ظاہر ہوتی ہے۔ شیطان لعین پوری زندگی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، آخری بار آتا ہے، کبھی پرانے ہتھ کنڈوں کے ساتھ، کبھی وسوسوں کے ذریعے، کبھی مختلف شکلیں اختیار کر کے۔ اس لمحے نمازیں، گناہ، آنسو، غفلت، توبہ سب ایک ایک کر کے سامنے آ جاتے ہیں۔ وہ کبھی مرے ہوئے ماں باپ کی صورت بنا کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کسی اور راستے کی دعوت دیتا ہے، لیکن جس کے دل میں سچا ایمان ہو وہ ثابت قدم رہتا ہے، اور جس کی زندگی شک اور غفلت میں گزری ہو، جس کا ایمان کمزور ہو، وہ آخری لمحے میں بھی دھوکے میں آ سکتا ہے۔ اگرچہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شیطان کے پانی کا پیالہ لے کر آنے کے بارے میں کوئی صریح اور مضبوط حدیث موجود نہیں۔ یہ بعض تفاسیر میں کمزور روایت کے طور پر ذکر ہوا ہے، مگر اس کا مقصد انسان کو جھنجھوڑنا اور خبردار کرنا ہے، کیونکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جس حال میں مرو گے اسی حال میں دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ جو شخص ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلتا ہے، مگر کافر کی موت کا منظر نہایت دردناک ہوتا ہے۔ فرشتے پکار کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل جہنم کے عذاب کی طرف۔ پھر روح کو رگوں اور نسوں میں سے زور سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے، جسم کانپ اٹھتا ہے، اندر کے اعضاء الٹ پلٹ ہو جاتے ہیں، جسم روح کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، مگر فرشتے اللہ کے حکم سے پوری قوت کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب نہ توبہ باقی رہتی ہے نہ مہلت۔ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی بہہ جائے، نہ تکلیف نہ سختی، اور کافر کی روح اس طرح کھینچی جاتی ہے جیسے کانٹوں بھرا لوہے کا آلہ گیلی اون میں سے نکالا جائے، رگیں نسیں سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ کافر کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کس کی ناپاک روح ہے؟ جواب دیا جاتا ہے، دنیا کے سب سے برے نام کے ساتھ۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھلوانے کی اجازت مانگی جاتی ہے، مگر دروازہ نہیں کھلتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اس کا نام سجین میں لکھ دو، اور روح کو بلندی سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن مومن کے ساتھ بالکل اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ نورانی چہروں والے فرشتے آتے ہیں، چہرے روشن، انداز نہایت نرمی والا، کہتے ہیں، ہے اے پاک روح، نکل اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی طرف۔ روح کو ریشم میں لپیٹ دیا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے۔ جب آسمانوں سے گزرتی ہے تو ہر فرشتہ پوچھتا ہے، یہ کس کی خوشبودار روح ہے؟ جواب میں دنیا کے بہترین نام اور صفات بیان کی جاتی ہے۔ ساتویں آسمان تک عزت کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔
फिर अल्लाह ताला का हुक्म होता है, उसे जमीन की तरफ वापस लौटा दो। मैंने उसे वहीं से पैदा किया था, वहीं लौटाना है और वहीं से दोबारा उठाना है। मौत के बाद जिस्म जमीन पर रह जाता है, गुस्ल दिया जाता है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने मर्दों को अच्छे तरीके से गुस्ल दो, फिर कफन पहनाया जाता है, सादा सफेद कपड़ा बगैर सिलाई के। वो शख्स जो दुनिया में घंटों कपड़े चुनता था, अब सिर्फ 3 कपड़ों में लपेट दिया जाता है। जनाजा उठता है, नमाज़े जनाजा अदा की जाती है और फिर उसे कब्र में उतार दिया जाता है। जब कब्र में पहली मुट्ठी मट्टी डाली जाती है तो आप सब कुछ सुन सकते हैं, मगर जवाब नहीं दे सकते। लोग आहिस्ता आहिस्ता वापस लौटने लगते हैं, कदमों की आवाजें दूर होती चली जाती है। फिर अचानक कब्र हिलने लगती है, दीवारें भटकने लगती हैं और मुनकर और नकीर आते हैं। आंखों में बिजली, आवाज में गरज, बाल जमीन तक लटके हुए, रौब ऐसा कि दिल कांप जाए। वो सवाल करते हैं, मन रब्बक, मन दीनक, और बंदा जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल आता है, जो सबसे बड़ा, सबसे नाजुक और सबसे हैबतनाक सवाल होता है। फरिश्ते कहते हैं, उन्जुर, देखो, और यकाएक कब्र के अंधेरे में नूर फैल जाता है। एक मुबारक चेहरा जाहिर होता है, वो चेहरा जिससे दुनिया ने सबसे ज्यादा मोहब्बत की, वो चेहरा जिसे देखकर सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम रो पड़ते थे, वो चेहरा जो रहमतुल लिल आलमीन सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। फरिश्ते पूछते हैं, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? और मोमिन के दिल से रोती हुई आवाज निकलती है, वो कहता है, यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यही हक लेकर आए। मैंने उनकी बात मानी, उनकी सुन्नत पर चला, उनसे मोहब्बत की, उनके लिए जिंदगी गुजारी। और अगर बंदा कहता है, हाँ हाँ मुझे नहीं मालूम, लोग जो कहते थे मैं भी वही कहता था, तो जवाब गलत हो जाता है। और अगर जवाब दुरुस्त हो तो एक नूरानी शख्स आता है और कहता है, मैं तेरे नेक आमाल हूं, तेरी नमाजें, तेरे रोजे, तेरे सजदे, तेरे आंसू, मैं कयामत के दिन तक तेरे साथ रहूंगा। कब्र कुशादा कर दी जाती है और जन्नत की हवा आने लगती है। लेकिन जिसने गफलत में जिंदगी गुजारी, नमाज छोड़ दी, वो कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तो कब्र इतनी तंग कर दी जाती है कि पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं। जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है, गर्म हवा और बदबू आती है। एक बदसूरत शख्स सामने आता है, जहरीले सांप छोड़ दिए जाते हैं जो कयामत तक काटते रहते हैं। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इन सांपों में से एक का जहर जमीन पर गिर जाए तो कयामत तक इस जमीन पर कुछ न उगे। कब्र में चीखने वाला चीखता रहेगा, मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मरहला गुजर जाता है और यही बरज़ख है, जो दरअसल कब्र का रूहानी आलम है। वहां सूरज भी नूर से भरा हुआ होता है। वहां मोमिन अपने उन प्यारों से मिलते हैं जो इससे पहले दुनिया से जा चुके होते हैं। आपस में बातें होती है, सुकून होता है, राहत होती है, खुशियां होती है, खाना पीना होता है। जन्नत की नेमतों की झलक दिखाई जाती है। शुहदा की रूहों के बारे में बाज बातें बयान की जाती है, मगर ये बात वाज़े रहे कि शुहदा की रूहें परिंदों की शक्ल में होती है। ये बात किसी सही और सरी हदीस से साबित नहीं, बल्कि बास तफासीर और कमजोर रिवायात में जिक्र हुई है, इसलिए इसे ततई बात नहीं कहा जा सकता। मगर बरज़ख में रूहों का एक दूसरे से ताल्लुक और मुलाकात साबित है। जब आप अपने किसी अजीज की कब्र पर दुआ करते हैं और वहां कोई परिंदा आवाज निकालता है, तो मुमकिन है वो महज एक परिंदा हो, मगर यह भी मुमकिन है कि अल्लाह ताला की मशीयत से वो सलाम का एक एहसास हो। क्या मरने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं? नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो एक दूसरे को पहचानते हैं, जैसे एक ही शाख पर बैठे हुए परिंदे एक दूसरे को पहचानते हैं। तो ये हकीकत है कि हमारे अपने हमें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाते। बरज़ख में वक्त दुनिया के मुकाबले में बहुत तेजी से गुजरता है। ना उनकी मौत आखिरी है और ना हमारी मौत आखिरी होगी। रूहों का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता, बस एक जिहद का पर्दा दरमियान में आ जाता है।
मौत रिश्तों को खत्म नहीं करती बल्कि उन्हें एक और मुकाम पर मुंतकिल कर देती है। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बनु सलीम कबीले का एक नौजवान फौत हो गया। उसकी मां बहुत रोई और नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कबीले में एक के बाद एक लोग फौत हो रहे हैं, क्या मैं अपने बेटे बशीर को सलाम भेज सकती हूँ? नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम सलाम भेज सकती हो। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मरने वाले एक दूसरे को पहचानते हैं और आपस में मिलते हैं जैसे एक ही शाख पर बैठे हुए परिंदे एक दूसरे से मिलते हैं। इस वाक़े के बाद बनु सलीम में जब भी कोई शख्स मौत के करीब होता तो उसके घर वाले कहते, जब तुम बशीर से मिलो तो हमारा सलाम कहना। वहां दुनिया जैसा राब्ता नहीं होता मगर मुलाकात होती है, बस इतनी सी बात है। वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं इंशाअल्लाह, और वो तुमसे जुदा नहीं हुए। तुम जो नेक आमाल करते हो, जो सदका देते हो, खास तौर पर दीन के लिए जो कुछ भी करते हो, उसका सवाब उन्हें पहुंचता है। ये बात इमाम सुफियान थौरी रहमहुल्लाह के करीबी अजीज ने भी बयान की है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैं बहुत गमगीन रहता था। रोजाना कब्रिस्तान जाता, वक्त गुजरता गया तो जाना कम हो गया। एक दिन कब्र के पास बैठा था कि नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि कब्र खुल गई और वालिद सामने आ गए, मगर यह वाकया सिर्फ एक अखलाकी सबक के तौर पर मशहूर है। हकीकत में ये एक मन घड़त हिकायत है और सूफियाना कहानियों में से है, इसलिए उसे दलील नहीं बनाया जा सकता। अब सवाल यह है कि कब्र में हकीकी सुकून किसको मिलता है? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के लिए अल्लाह के हाथ 6 इनामात है। उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, जन्नत में उसका मुकाम दिखा दिया जाता है, उसे ऐसा ताज पहनाया जाता है जो दुनिया और इसकी हर चीज से बेहतर होता है, उसे हूरुल ऐन अता की जाती है और इसके 70 रिश्तेदारों के हक में शफात कबूल की जाती है। एक और हदीस में रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के मरने के बाद उसके ऐमाल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय उसके जिसका दिल अल्लाह की राह से जुड़ा रहा। इसलिए तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे नेक ऐमाल, तुम्हारे सदकात, ये सब मरने वालों के लिए दुनिया की हर नेमत से कीमती तोहफे हैं। एक शख्स रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, मेरी मां का इंतकाल हो गया है, अगर वो बोल सकती तो सदका जरूर करती, क्या मैं उनकी तरफ से सदका कर सकता हूं? तो रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, और ये हुक्म सिर्फ माँ बाप के लिए नहीं बल्कि हर अपने के लिए है। वो लोग एक मंजिल आगे तुम्हारा इंतजार कर रहे होते हैं, जब तुम वहां पहुंचोगे तो वो कहेंगे कि जो तुमने भेजा था वो सब हमें पहुंच गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कब्र में मुनकर और नकीर आएंगे तो क्या उस वक्त हमारे पास वही अक्ल होगी जो आज है? रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल वही। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर तो कोई डर की बात नहीं, क्योंकि ईमान साथ होगा, कब्र तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम तुम्हारे नए पड़ोसी होंगे। इसीलिए जनाजे की दुआ में हम कहते हैं, ए अल्लाह, इसे इस घर से बेहतर घर अता फरमा, इस खानदान से बेहतर खानदान अता फरमा, इस जोड़े से बेहतर जोड़ा अता फरमा। बाज उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद बरज़ख में सौलेह रूहों की रिफाकत है। हर हाल में हकीकत यही है कि रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। हर दुआ, हर सदका, हर कुरान की तलावत जो तुम उनके नाम पर करते हो, वो सब उन तक पहुंचती है। वो नेकी उन तक नूर बनकर पहुंचती है। कब्र की तारीकी में वही नूर ठंडक, रोशनी और सुकून में बदल जाता है। इंसान के हवास महदूद है। बाज परिंदे अल्ट्रा वायलेट रोशनी देख सकते हैं। मक्खी वो रंग देख लेती है जो इंसान नहीं देख सकता। बिल्ली अंधेरे में हरकत महसूस कर लेती है, कुत्ता दूर से सूंघ लेता है। अल्लाह ताला ने हमें वही हवास अता किए हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कब्र के अजाब की आवाज आती है तो हर जानदार उसे सुनता है सिवाय इंसान और जिन के, और अगर इंसान सुन ले तो दुनिया में जीना मुश्किल हो जाए। रूह की भी खुशबू होती है।
नेक नियत से मुश्क जैसी खुशबू उठती है और बुरी नियत से बदबू। रसूल अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदकार रूह की बदबू का जिक्र फरमाया तो अपनी नाक मुबारक पर हाथ रख लिया, और जब नेक रूह उठती है तो फरिश्ते कहते हैं ये खूबसूरत खुशबू कहां से आ रही है। मरने वाले अपने प्यारों के आमाल देखते हैं, और यही जिंदा लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक है। एक दिन हम भी कब्र में होंगे और कोई हमारे लिए भी दुआ करेगा। मौत के बाद तीन चीजें हमेशा फायदा देती हैं: सदका जारिया, नफा बख्श इल्म और नेक औलाद जो दुआ करे। कब्र में जब रूह खौफ में होती है और फरिश्ते कहते हैं तुम्हारे बेटे ने दुआ की, तुम्हारी बेटी ने कुरान पढ़ा, तो सुकून उतर आता है। सूरा यासीन, सूरा अल फातिहा, सूरा अल इखलास, कुरान की हर आयत कब्र में रोशनी बनकर नाजिल होती है। और जब गुनहगार कब्र में दाखिल होता है तो उसके सामने पर्दा उठा दिया जाता है। कहा जाता है देखो ये वो दुनिया थी जिसके पीछे तुम भागते रहे, और ये वो जन्नत थी जो तुमने खो दी। फिर दूसरा पर्दा उठता है, कहा जाता है ये तुम्हारा माल है जो अब दूसरों के पास है, तुम्हारे बच्चे उसे इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम्हारे जिस्म को मट्टी और कीले खा रहे हैं। फिर आवाज आती है तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं आया, ना माल, ना मनसब, ना ताकत, सिर्फ एक चीज साथ आई, तुम्हारी उम्र जो अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की थी, और तुमने इसे किस तरह गुजारा, यही वहां काम आएगी। कुछ भी साथ नहीं गया, और सबसे बड़ी खैरात तुम्हारी उम्र थी। अगर वो अल्लाह की राह में ना गुजरी तो फिर अमीर होने का क्या फायदा और गरीब होने का क्या फायदा। कब्र में सब बराबर होते हैं, वहां सिर्फ आमाल काम आते हैं। ऐ अल्लाह हमें ऐसी मौत नसीब फरमा कि हमारी कब्र रोशन हो, हमारी जबान से आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह निकले, और हमारी कब्र जन्नत का बागीचा बन जाए। अगर आज नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देख रहे होते तो क्या फरमाते? शायद यही कि जिंदगी एक स्टेज है और मौत के बाद ऑडियंस में बैठना है। फरिश्ते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो सब जो हमसे पहले गुजर चुके हैं सब देख रहे हैं। अभी भी वक्त है, नमाज को ना छोड़ो, तौबा को मुअख्खर ना करो, दिलों को जोड़ लो, माफी मांग लो। ए अल्लाह हमें ईमान के साथ जीना और ईमान के साथ मरना नसीब फरमा। कब्र में हमें तन्हा ना छोड़ना, वहां नूर, सुकून और रहमत अता फरमा। जो भी ये बात सुन रहा है या देख रहा है उसकी और उसके तमाम प्यारों की कब्रें जन्नत के बागीचे बना दे, क्योंकि असल जिंदगी कब्र से शुरू होती है। आज जो तुम जी रहे हो वही कल कब्र में काम आएगा। कब्र या तो जन्नत का बागीचा होगी या जहन्नम का गढ़ा, और उसका फैसला आज तुम्हारे हाथ में है। अभी सांस बाकी है तो दरवाजा खुला है, अभी दिल धड़क रहा है तो लौट आने का मौका है। अल्लाह की रहमत मायूसी से बड़ी है। एक सच्ची तौबा बरसों के गुनाह मिटा देती है। एक सजदा अर्श तक पहुंच जाता है। एक आंसू तकदीर बदल देता है। दुनिया की चमक चंद लम्हों की है, मगर कब्र की रोशनी हमेशा की है। आज अगर नफ्स जीत गया तो कल पछतावा होगा, और आज अगर ईमान जीत गया तो कल राहत होगी। अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो, कुरान को थाम लो, सुन्नत रसूलुल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी बना लो, क्योंकि कब्र में ना शोहरत काम आएगी ना ताकत। वहां सिर्फ ये पूछा जाएगा कि तू किसका था और किस रास्ते पर चला। इसलिए आज फैसला कर लो कि अंजाम रहमत हो या हसरत, क्योंकि वक्त थम नहीं रहा, घड़ी चल रही है और हर गुजरता लम्हा हमें कब्र के करीब कर रहा है। इस्लामी अकीदे के मुताबिक मौत इख्तिताम नहीं बल्कि एक मरहला है। असल जिंदगी का आगाज कयामत से पहले के मनाजिर और फिर कयामत के दिन से होता है। इंसान जब दुनिया से रुखसत होता है तो वो बरज़ख में दाखिल हो जाता है। ये वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान पर्दा है, जहां वक्त का एहसास दुनिया जैसा नहीं रहता, सदियों का अरसा भी लम्हों जैसा महसूस होता है। कब्र इंसान के लिए या तो जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाती है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा, मगर ये सब कयामत के दिन के मुकाबले में सिर्फ तमहीद होती है। कयामत से पहले के मनाजिर खुद कुरान और हदीस में निहायत हैबतनाक अंदाज में बयान किए गए हैं। वक्त के साथ दुनिया में बुराइयां बढ़ती जाएंगी, अमानतें खत्म होंगी, झूठ आम हो जाएगा,
जुल्म फख्र बन जाएगा, नाहक खून बहाना मामूल समझा जाएगा, दीन अजनबी हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत फैल जाएगी। लोग नमाज को बोझ समझेंगे, हराम को कमाल और हलाल को मुश्किल कहेंगे। माँ बाप की नाफरमानी आम होगी और दोस्तों को वालिदैन पर तरजीह दी जाएगी। औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की। सूद हर तरफ फैल जाएगा, मौसीकी और लहवो लाभ को जिंदगी का मकसद बना लिया जाएगा। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले फितनों का ऐसा दौर आएगा जिसमें हक पर कायम रहना जलते अंगारे को पकड़ने जैसा होगा। इन्हीं निशानियों में दज्जाल का ज़हूर भी है, जो सबसे बड़ा फितना होगा। वो खुदाई का दावा करेगा, उसके पास हैरान किन चीजें होंगी, मगर वो एक आंख से काना होगा। उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। अदल कायम होगा, जमीन बरकतें अगलेगी। मगर ये सब भी कयामत से पहले के मनाजिर हैं। उसके बाद एक वक्त आएगा जब जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं रहेगा, ईमान उठ जाएगा। फिर अचानक कयामत की इब्तिदा होगी। ये दिन जुमा का होगा। नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत जुमा के दिन कायम होगी। उस दिन लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल होंगे। कोई खरीदो फरोख्त कर रहा होगा, कोई जानवरों को पानी पिला रहा होगा, कोई दीवार बना रहा होगा कि अचानक सूर फूंका जाएगा। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर में फूंक मारेंगे। ये पहली सूर होगी जिसे नफखा साक कहा जाता है। उसकी आवाज इतनी खौफनाक होगी कि जमीन और आसमान के दरमियान हर चीज लरज उठेगी। पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे, जमीन हिचकोले खाने लगेगी, आसमान फट जाएगा, सितारे बेनूर होकर बिखर जाएंगे, सूरज लपेट दिया जाएगा, चांद बेनूर हो जाएगा। हामिला जानवर अपने बच्चों को भूल जाएंगे, लोग नशे में नजर आएंगे, हालांकि नशा नहीं होगा। ये सब कुरान ने सूरतुल तकवीर, सूरतुल इन्फितार और सूरतुल जिलजाल में बयान किया है। इस पहली सूर के बाद हर जी रूह पर मौत तारी हो जाएगी, हत्ता कि हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम भी। सिर्फ अल्लाह ताला बाकी रहेंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज बादशाहत किसकी है? फिर खुद ही जवाब देंगे, अल्लाह अल वाहिदुल कहार की। इसके बाद एक तवील खामोशी होगी, कायनात सुनसान हो जाएगी, न वक्त का एहसास होगा न हरकत। फिर अल्लाह ताला दोबारा हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को जिंदा करेंगे और दूसरी सूर फूंकी जाएगी, जिसे नफखतुल बास कहा जाता है। मगर यह मंजर कयामत के दिन का आगाज है। कयामत से पहले का आखिरी मंजर यही होगा कि पहली सूर के साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये वो लम्हा होगा जिसके बाद दुनिया का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इंसान जिस दुनिया पर नाज करता था, जिस माल, औलाद, ताकत और ओहदों पर गुरूर करता था, सब मिट्टी हो चुका होगा। यही वो मकाम है जहां कयामत से पहले की दुनिया खत्म हो जाती है और कयामत के दिन का आगाज होने वाला होता है। इसलिए अक्लमंद वो है जो इससे पहले पहले खुद को संभाल ले, क्योंकि जब सूर फूंका जाएगा तो ना तौबा कबूल होगी, ना मोहलत मिलेगी, ना वापसी का रास्ता होगा। यही वजह है कि नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आखिरत को याद करने, मौत को कसरत से याद करने और कयामत के लिए तैयारी करने की तलकीन फरमाते थे। क्योंकि कयामत से पहले के ये मनाजिर सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए हैं, ताकि इंसान जान ले कि असल जिंदगी अभी आनी है और इस दिन से पहले का हर लम्हा इम्तिहान है। कयामत के दिन सबसे पहले हर इंसान की मौत के बाद रूह अपने आमाल के मुताबिक पल सरात और मीजान तक पहुंचती है। मीजान में हर अमल नेकी या बुराई के वजन से तोला जाता है, एक जर्रा बराबर भी छुप नहीं सकता। नेक आमाल वाले मोमिनों के लिए आसान और रोशनी से भरपूर होंगे। वो पल सरात पर नूर की मानिंद चलेंगे और फरिश्ते उन्हें हौसला देंगे। काफिर और मुनाफिक भारी गुनाहों के साथ जमीन पर गिरकर जहन्नम की तरफ धकेल दिए जाएंगे। पल सरात इंतहाई बारीक और खतरनाक है। आमाल की शिद्दत के मुताबिक हर कदम का फैसला होगा। पल सरात उबूर करने के बाद मोमिन सीधा जन्नत में दाखिल होंगे, जहां रोशनी, सुकून, फूल, नहरें, खुशबू और हर नेमत उनके आमाल के मुताबिक होगी।
फरिश्ते उनके साथ रहेंगे और नबी अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उनके लिए मददगार होगी। काफिर और गुनहगार जहन्नम में जाएंगे, जहां भारी आमाल, आग, अजाब और खौफनाक मनाजिर होंगे। कयामत के दिन हर इंसान के लिए आमाल की मुकम्मल हकीकत, नेक और बदकार की रोशनी या स्याही, वालदैन, शुहदा, सदकात और नेक आमाल की तासीर सब वाज़े होगी। उस दिन जमीन और आसमान, सूरज और हर शय इंसानों के आमाल का गवाह होगी। ये दिन निहायत तवील, शदीद और हर लम्हा खौफ, हैरत और आमाल के मुताबिक खुशी या अजाब से भरपूर होगा। मोमिन के लिए नूर, सुकून और अल्लाह की कुर्बत होगी। काफिर के लिए शदीद अजाब और निदामत। क़यामत का मकसद आमाल का मुकम्मल हिसाब लेना और हर इंसान के आमाल के मुताबिक इनाम या सजा देना है। तो अजीज नाजरीन, ये थी बरज़ख की हकीकत, जहां हर रूह अपनी मौत के बाद एक नया सफर शुरू करती है, आमाल के मुताबिक आराम या अजाब महसूस करती है और एक दिन कयामत के दिन तक इंतजार करती है। याद रखें कि बरज़ख सिर्फ एक वक्फा नहीं, बल्कि हमारे आमाल का पहला नतीजा है। नेक आमाल करने वाले के लिए ये सुकून और नूर की दुनिया है और बुराई करने वाले के लिए अजाब और सख्ती। लिहाजा आज से अपने आमाल की तरफ तवज्जो दें। नमाज, रोजा, सदका, नेक नियतें और अल्लाह के रास्ते में की जाने वाली हर मेहनत बरज़ख में राहत का सबब बन सकती है। दुआ करें कि अल्लाह हमें बरज़ख में सुकून दे, हमारी कब्रें जन्नत के बागीचे बनाए और क़यामत के दिन हमें नेक आमाल के साथ हिसाब किताब की आसानी नसीब हो। आखिर में बस ये याद रखें कि मौत के बाद का ये सफर हर इंसान के लिए हकीकत है और आज जो भी वक्त है वही हमारे आमाल को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका है। बरज़ख की ये हकीकत हमें अपने आमाल की इस्लाह और अल्लाह की रजा की तरफ मुतवज्जह करती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी फायदा उठा सके। हम ये जानना चाहते हैं कि आपको वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा कौन सा लगा। हमारे चैनल अल बुरूज इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंचे। कमेंट में अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम लिखें और बताएं कि आप इस नाम का असर अपनी जिंदगी में कैसे महसूस करते हैं। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हाफिज।